Friends, again we are meeting here to discuss one of the most core subject of accounting. The accounting, the total structure, total building of accounting rests with journal entry. If you have got the fundamental strong in journal entry, I am sure nobody can beat you, because the journal entry is the stepping stone on which the entire structure of accountancy rests. So as your the pillar of the building is strong, the building is safe. Similarly, the journal entry is the key role, plays a very key role, a vital role in building the structure of accountancy. And accountancy is the language of the business, language of day-to-day life. Therefore, I should say that this in the candlestick, you need not have to go through the intricacies of golden rule. You please remember golden rule for your question answer theoretical purpose. And at the start, I should advise you that you just remember one is increase, another one is decrease. Asset increase, debit. Asset decrease, credit. Expense increase, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है डेबिट. एक्सपेंडिचर डिक्रीज, क्रेडिट. इनकम डिक्रीज, इनकम डिक्रीज तब डेबिट. इनकम इंक्रीज तब क्रेडिट. इनकम इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, जो आपका बिजनेस का जो लायबिलिटी है, अगर ये डिक्रीज, दैट इज योर डेबिट. इंक्रीज, क्रेडिट. सो इन द journal entry first class, we have discussed about the assets. Now I am coming to your liability. Assets is the property, liability is the thing which you, the business, owe to the others. Liability कैसे बनता है? This is the proprietor of the business. मान लीजिए कि this is the proprietor of the business. And this proprietor of the business, he has given with his hand, right? He has given with his hand, say 1 lakh rupees for starting a business, for starting a grocery shop. A grocery shop. That person is starting a grocery shop. एंड अकाउंटेंसी का आपको जो एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि प्रोप्राइटर एंड बिजनेस आर सेपरेट. क्योंकि सेपरेट अगर नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन हो नहीं सकता है. ए मैन कैन नॉट मेक ए ट्रांजैक्शन इन विथ हिज ओन हैंड. इसलिए द प्रोप्राइटर एंड द बिजनेस, वी consider both are true, conceptually true. There is no, they are virtually true. So the proprietor started business, a grocery shop, and
we are going to pass, so the money is transferring from proprietor to the grocery shop. So who is giving money? The proprietor, the owner, the partner, the shareholder. All these are the owners of the business. So the owner is giving rupees 1 lakh to the grocery shop, his business. The business is getting money, so money is flowing. Money is flowing from the owner to the grocery shop, the business. So in the business box, this is a cash box here. A cash box, right? In the cash box, rupees 1 lakh is making a entry. The business is keeping the money in the cash box. This is cash box. So business is keeping money in the cash box. So to the business, the money is coming. The cash is coming. Cash increases. So when cash increases, cash is a asset. Asset increase. So cash debit. Asset increase. तब में एक जर्नल एंट्री Number 2, owner invested rupees 1 lakh in the business. What is going to happen here? Owner invested rupees 1 lakh in the business. So the owner is giving rupees 1 lakh in the business. So in the business box, cash box, the cash box, cash is increasing. Cash increase. But every debit, that means cash is a asset. So asset increase, that is your debit. Definitely there is a credit, because for every debit there is a credit. So credit क्या है? ना business सोचते हैं, business is thinking that I have borrowed money from my proprietor, from my owner, from my shareholder, from my owner, that is maybe the partner also. So business is thinking in that way. So in the books of the business, in the books of the grocery shop, cash is coming in. So cash debit. And the grocery shop is getting money from this person. He is the owner. Let us make a name Mr. X. So it is getting money from Mr. X. So it is a liability, because the business is thinking, I have borrowed money, I have taken money. मैं उधार से लिए हैं. किससे? ना ओनर से, मिस्टर एक्स से. बट एक्स का नाम वो नहीं लेता है. क्यों? मैं आपको बहुत क्लास आगे में बोले थे, बिजनेस जब ओनर से पैसा लेते हैं तब उनका ओनर का नाम नहीं लेते हैं. जिस तरह आप मान लीजिए कि हॉस्टल में रहते हैं और आपको पैसा पिताजी ने भेजे हैं, आपका फ्रेंड बोलते हैं पिताजी पैसा भेजे हैं क्या? तुम क्या बोलते हैं? यस माय फादर हैज सेंट मनी.
You are not taking the name of your father. It is just a matter of respect. अगर आप दूसरा किसी से पैसा लिए हैं तो उसका नाम आप लोग बोल देते हैं। पिताजी से पैसा लेते हैं तो आप रेस्पेक्ट से बोलते हैं, आई हैव टेकन मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स, फ्रॉम माई फादर। सो इसलिए आप नाम नहीं लेते हैं। Similarly, a business is not taking name of the proprietor. Proprietor का नाम मिस्टर एक्स, बट बिजनेस सोचते इसका नाम दिया है, फादर नहीं दिया है। क्या दिया है? कैपिटल। सो इन द बिजनेस लैंग्वेज प्रोप्राइटर का एक दूसरा नाम होता है कैपिटल। प्रोप्राइटर जब पैसा देते हैं, बिजनेस सोचते हैं कि मेरा पास पैसा आया है। सो व्हाट हैपेंस हियर? कैश इज इंक्रीजिंग, सो कैश इज एन एसेट। सो आवर जर्नल एंट्री विल बी right? The journal entry will be cash increases. आपका कैश इंक्रीज, कैश अकाउंट डेबिट, ₹1,00,000 मैं इधर लिख देते हैं, दिस इज इंक्रीज, एसेट इंक्रीज। ये आपका एसेट इंक्रीज। और बिजनेस सोचते हैं कि मैं प्रोप्राइटर से उधार लिए हैं, उधार मीन्स लायबिलिटी। सोनर और लेटर बिजनेस इज थिंकिंग आई विल पे बैक, मैं पेमेंट करेंगे फ्यूचर में, अभी तो मैं पैसा उधार से लिए हैं। किससे? ना मेरा ओनर से। इसलिए ओनर का नाम दिया है टू कैपिटल अकाउंट। सो बिजनेस का जो उधार, बिजनेस का जो लायबिलिटी, पहले तो लायबिलिटी नहीं था, अभी 1,00,000 रुपया लेने का बाद लायबिलिटी इंक्रीज। और फ्रेंड्स, अगर आपका लायबिलिटी इंक्रीज होता है, आप देख लीजिए लायबिलिटी इंक्रीज, तब क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज तब क्रेडिट। सो कैपिटल, दिस इज लायबिलिटी इंक्रीज 1,00,000 rupees. Here also liability increase. And we can give a narration being the business started with cash. When the business started with cash, here asset increase, cash debit, liability increase, liability credit, capital is a liability. business सोचते हैं I have borrowed money from my owner. So this is a liability, this is a asset. Let us come to the concept of liability. Liability, कहां से liability हो सकता है? आपका liability दो टाइप का liability होता है। Liability means I have taken, I have borrowed, I am liable to pay. Liable to pay, this is your liability. You have to pay either now or in the future, but you have to pay. So this liability is of two types. One is your non-current liability.
non-current liability. This is non-current liability and this is your current liability. This is your current liability. एक तो नॉन करेंट लायबिलिटी होता है और दूसरा जो होता है वो आपका करेंट लायबिलिटी। जो नॉन करेंट लायबिलिटी उसमें आपका बैंक लोन ये भी आपका जो टर्म लोन होता है, टर्म लोन, डिवेंचर कंपनी में होता है डिवेंचर, राइट, और बैंक ओवरड्राफ्ट वो भी एक लोन है, राइट, और भी होता है। नॉन करेंट लायबिलिटी आप बैंक से लोन लिए, पब्लिक से लोन लिए, डिवेंचर, बैंक से ओवरड्राफ्ट है, दूसरा कहां से भी कुछ पैसा लेते हैं। करेंट लायबिलिटी का अंदर आपका ये बिल्स पेएबल आता है। बिल्स पेएबल हम लोग यूज करते हैं, कोई सप्लायर को पेमेंट करते हैं। मान लीजिए कि कोई सप्लायर आपको सामान सप्लाई किया, गुड्स सप्लाइड बाय द सप्लायर, मेरे को सप्लायर को पेमेंट करना है इसलिए मैं बिल इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको बोलते हैं बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल, ट्रेड क्रेडिटर, क्रेडिटर आपका कोई सप्लायर होता है, सप्लायर ऑफ गुड्स, सप्लायर ऑफ सर्विसेज, इसलिए ट्रेड क्रेडिटर होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी पेएबल्स आउटस्टैंडिंग, मान लीजिए कि आप 11 मंथ का सैलरी दिए हैं, मार्च का सैलरी आप पेमेंट नहीं किए, अप्रैल में पेमेंट होगा, मार्च का एंड में ईयर खत्म हो जाता है, तो मार्च का सैलरी दिस हैज नॉट बीन पेड, कब पेमेंट होगा? अप्रैल में पेमेंट होगा। सो मार्च अंत में, एट द एंड ऑफ द मार्च, सैलरी इज आउटस्टैंडिंग येट टू बी पेड, सैलरी एक्रूड, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दिस इज ऑल्सो ए करेंट लायबिलिटी, राइट। सिमिलरली आप अगर दूसरा लायबिलिटी बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी, ये तो होता है, और एक है लायबिलिटी का अंदर मेरा कैपिटल भी आते हैं। कैपिटल इज ऑल्सो ए लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस सोचते हैं कि मैं प्रोपाइटर से पैसा लिए हैं, इसलिए कैपिटल इज ऑल्सो ए लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। दिस इज कैपिटल, राइट। सो कोई भी लायबिलिटी होता है जो आपको पैसा देना है, उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। सो लेट अस प्रोसीड विद द थर्ड जर्नल एंट्री। थर्ड जर्नल एंट्री
borrowed rupees 20,000 from संदीप। ये क्या होता है? संदीप से 20,000 बिजनेस बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, बिजनेस का पास पैसा नहीं है। संदीप एक प्रोप्राइटर नहीं है, दूसरा कोई आदमी है। प्रोप्राइटर का नाम मान लीजिए मिस्टर एक्स। दूसरा एक आदमी से, संदीप से पैसा लेता है बिजनेस। कितना? ना 20,000 रुपीज। सो बिजनेस का पास आपका पैसा आते हैं, कितना? कैश बॉक्स में आते हैं आपका 20,000। सो कैश इंक्रीज, ये आपका एसेट इंक्रीज। और किससे पैसा लेते हैं? ना संदीप से। संदीप इज द सप्लायर ऑफ द मनी, संदीप इज द गिवर ऑफ द मनी। सो बिजनेस इज थिंकिंग हमको 20,000 कैश मिला है, और किसी से? ना संदीप से। कैसे मिला है? उधार में, लोन में। इसलिए संदीप ए लाइबिलिटी। सो ए लाइबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज, आपका लाइबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि आप उधार से पैसा लेते हैं संदीप से। सो लाइबिलिटी इंक्रीज। सो क्या जर्नल एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू संदीप अकाउंट। आपको ये पता होगा, जब मैं प्रोप्राइटर से पैसा लिए थे तब कैश टू कैपिटल किए थे। कैपिटल इज ऑल्सो लाइबिलिटी, बट इधर कैश अकाउंट डेबिट टू संदीप कर दिए। क्यों? इधर भी तो कैपिटल लिख सकते हैं। नहीं, बिकॉज वो जो पैसा था मैं खुद ओनर से लिए थे, इसलिए कैपिटल। ये कोई दूसरा आदमी से पैसा लिए हैं, उसका नाम हम लोग लिख दिए, क्योंकि नाम लिख देने से पता हो जाएगा कि उससे पैसा लिए हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट टू संदीप अकाउंट। संदीप ने आपका लोन दिया, और बिजनेस इज टेकिंग लोन फ्रॉम संदीप। आप संदीप लिख सकते हैं, लोन फ्रॉम संदीप भी लिख सकते हैं। सो लोन आपका जो लाइबिलिटी इंक्रीज, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो आपको क्रेडिट करना चाहिए लाइबिलिटी इंक्रीज। इधर कैश डेबिट एसेट इंक्रीज, क्योंकि आपका कैश एसेट का अंदर आते हैं। Right? Now we will go for another journal entry. Now we are doing the very fundamentals entry. We will go for the hard problem from your books, problem from your study material, and we will do all sorts of journal entry in the many number of classes. So keep on watching. And if you like it, you can subscribe, and so that all the updates will be available to you. So let us come to another one, that is 4. That is 4. Purchased
raw materials for rupees 30,000 purchased raw materials for rupees 30,000 from Mr. P on credit। उधार से रॉ मटेरियल 30,000 का परचेस किए हैं, उधार से परचेस किए, पैसा नहीं दिए हैं, बाद में पैसा देंगे, उसको बोलते हैं लायबिलिटी, क्योंकि मैं बाद में पैसा पेमेंट करेंगे। सो जो पी से मैं रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तो बिजनेस का पास आपका परचेस आता है। परचेस इज एन एक्सपेंडिचर। आप कोई भी परचेस घर में करते हैं तो एक्सपेंडिचर होता है, आप रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तो एक्सपेंडिचर होता है, आप सैलरी देते हैं तो एक्सपेंडिचर होता है, आप वेजेस पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंडिचर्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये सारा चीज आपका एक्सपेंडिचर होता है। सो एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज करेगा, ये देख लीजिए, एक्सपेंस इंक्रीज, तब एक्सपेंडिचर को डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेरा इंक्रीज होता है। और ये रॉ मटेरियल जब परचेस करते हैं तब लिखते हैं परचेसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये जो एक्सपेंस इंक्रीज, अगर एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो ये डेबिट होगा, ये 30,000। एवरी डेबिट हैज ए कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। मैं किससे परचेस किए हैं इसको? ना मिस्टर पी से। क्यों नाम लेते हैं? अगर कैश में परचेस करेंगे तो मेरा कैश बैलेंस घटेगा, कैश बैलेंस डिक्रीज करेगा बिजनेस का। कैश अगर डिक्रीज करेगा तो एसेट डिक्रीज, कैश क्रेडिट। बट ये कैश में परचेस नहीं किए, क्रेडिट में, उधार में परचेस किए हैं। So if we purchase anything on credit, मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि मैं उधार से परचेस किए, बाद में मेरे को पैसा देना है, इसलिए लायबिलिटी अगर इंक्रीज, ये आप देख लीजिए, लायबिलिटी इंक्रीज, दिस इज इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। सो टू नाम लिख देंगे मिस्टर पी अकाउंट 30,000, ये आपका एसेट इंक्रीज और ये आपका लायबिलिटी इंक्रीज। सो बीइंग द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर पी, ये आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग the goods purchased from Mr. P। So P से मैं गुड्स परचेस करते हैं उधार से। सो इसलिए मेरा लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो मैं क्रेडिट कर देंगे, राइट। So this is a liability also, this is a trade creditor। क्यों ना? ट्रेड में जिस गुड्स में हम डील करते हैं, जिसको परचेस करते हैं, सेल करते हैं, जो रॉ मटेरियल मेरा मैन्युफैक्चरिंग में काम में लगता है, तो उसी से मैं डील करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग गुड्स। सो मिस्टर पी अकाउंट क्रेडिट। दूसरा एक एंट्री में बोलते हैं एंट्री नंबर 5,
Just I am making a change here. I am making a full stop here. So you can know what is the change here. Purchase raw material for rupees 30,000 कोई नाम नहीं दिए। मान लीजिए कि आप कोई दुकान में गए हैं, पैसा लेके गए हैं, पैसा पॉकेट में है, वो बोला है कि आप कितना हुआ मेरा ना 30,000। अब पैसा पॉकेट से निकाल के दे दिए, बिजनेस का बॉक्स से पैसा निकाल के दे दिए। सो आपको नाम नहीं पूछेगा क्योंकि आप कैश दे दिए और सामान ले लिए। अगर आप उधार से परचेस करेंगे तो वो खाता में लिखेगा, आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर एटसेट्रा लिखेगा। तो 4 नंबर जो आपका जर्नल एंट्री था वो उधार में था, इसलिए नाम दिया था। क्यों नाम देता है जर्नल एंट्री में? क्रेडिट परचेस में जनरली नाम दे देता है, बट ये जो कुछ नहीं बोला है तब मैं सोचेंगे कि नाम नहीं दिया है, किसी से मैं परचेस किए, तब मैं सोच लेते हैं कि दिस इज ए रॉ मटेरियल परचेस इन कैश। अगर कुछ नहीं बोलता है तो फिर वो सोच लेते हैं कि कैश, क्योंकि नाम नहीं दिया है। राइट? छोटा मोटा शॉप में जाने से भी आपका वही होता है। सो आपका परचेस तो एक्सपेंसेस है, ये आपका एसेट का तरफ ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस होने से ये आपका बढ़ेगा। सो एक्सपेंस होने से परचेस आपका बढ़ेगा, ये एक्सपेंस इंक्रीज। सो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तब ये डेबिट, और ये कैश में परचेस किए इसलिए लिखेंगे टू कैश। आपका कैश बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आप पैसा देके परचेस किए हैं। सो दिस इज अगेन 30,000। सो बीइंग द गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, आप कैश में परचेस किए। इसमें आप देख लीजिए दैट इज एक्सपेंस इंक्रीज, और लाइबिलिटी भी ये लाइबिलिटी नहीं है, ये आपका एसेट है। सो द एसेट डिक्रीज, ये आपका एसेट डिक्रीज। सो एक्सपेंस इंक्रीज और एसेट डिक्रीज। जो भी आप परचेस करते हैं उसको आप गोडाउन में रखते हैं, गोडाउन में उसका नाम होता है स्टॉक। स्टॉक इज ए एसेट। सो एसेट अगर बढ़ेगा तब भी आपका डेबिट, एक्सपेंस बढ़ेगा तब भी आपका डेबिट। राइट? और ये पैसा देने से when you are paying money from the cash box, money going out, आपका एसेट डिक्रीज। ये जब एसेट डिक्रीज होता है तब में बोलते हैं कि कैश क्रेडिट। ये देखिए एसेट डिक्रीज होने से आपका क्रेडिट होगा, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। तो इसी तरह जब 4th नंबर एंट्री में मैं उसको एसेट लिखे थे, उसका भी कुछ रीजन था। जब एसेट होता है, जब एक्सपेंस होता है, वो इंक्रीज करने से आपका डेबिट। और जो भी मैं परचेस करते हैं, परचेस का 2 साइड होता है। एक तो परचेस इज एन एक्सपेंडिचर, परचेस इज ए स्टॉक, क्योंकि रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, ये रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक इज ए एसेट। राइट? सो जिस तरफ आपको अच्छा लगेगा उसी तरफ यू हैव टू अंडरस्टैंड
that purchase account debit to cash. So मान लीजिए कि आप रॉ मटेरियल इतना परचेस किए, सो रॉ मटेरियल जब परचेस होता है ये आपका स्टॉक हो जाता है, स्टॉक इज एसेट। बट जब परचेस करते हैं, परचेस इज एन एक्सपेंडिचर, सो आपका स्टॉक बढ़ेगा, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तब ये आपका डेबिट होगा। बट इससे क्या होता है, आप कैश दे के परचेस करते हैं तो कैश बॉक्स से आपका 30,000 माइनस हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका कैश बॉक्स में कुछ पैसा था, 50,000 था, 30,000 निकल गया तो आपका बैलेंस घटेगा। सो एसेट डिक्रीज, ये डिक्रीज होने से क्रेडिट, ये इंक्रीज होने से स्टॉक इंक्रीज, ये आपका डेबिट। सो स्टॉक एक्सपेंस इंक्रीज होने से डेबिट। देयरफॉर purchase raw material for cash, purchase account debit to cash. Cash is going out from the business box. So friends, we will continue with more number of videos on journal entry till you will be strong enough to face any situation of journal entry. So if you like the video, please subscribe and offer your comments. Thank you. Meet you in the next class.